नेक्स्ट देखते हैं. देयर आर सम एडजेक्टिव्स विच do not admit any comparative or superlative degree. Such adjective denotes absolute position. ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂ square, perfect, round, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ. square ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਤੇ ਪਰਫੈਕਟ 90 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮੋਰ ਸਕੁਅਰ, ਮੋਰ ਰਾਊਂਡ. ਰਾਊਂਡ ਤਾਂ ਗੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਰਾਊਂਡ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਊਂਡ ਹੀ ਰਹੇਗਾ. ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਊਂਡ. ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਊਂਡ ਤਾਂ ਰਾਊਂਡ ਹੀ ਹੁੰਦਾ. ਜਿਹੜਾ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋਏਗਾ. ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਆਈਡਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਸੋ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਡਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਰਫੈਕਟ, ਯੂਨੀਕ, ਆਈਡਲ, ਚੀਫ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ, ਐਕਸਟਰੀਮ, ਕੰਪਲੀਟ, ਇੰਟਾਇਰ, ਐਕਸੀਲੈਂਟ, ਐਬਸੋਲੂਟ, ਇੰਪੋਸੀਬਲ, ਇੰਟਰਨਲ, ਸੁਪਰੀਮ, ਐਕਸੈਕਟਰਾ. ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਸਕੁਅਰ, ਰਾਊਂਡ, ਇਹ ਵੀ ਐਡਜੈਕਟਿਵਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਐਕਸਟਰੀਮ ਹੁੰਦੇ. ਅੱਛਾ, ਆਈ ਹੈਵ ਨੈਵਰ ਸੀਨ ਅ ਮੋਰ ਕੰਪਲੀਟ ਬੁੱਕ on general studies. more complete book. complete है ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ complete ਥੋੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ. I have never seen a complete book. ਠੀਕ ਹੈ, on general studies. ਸੋ ਆਪਾਂ more use ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ. ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ complete ਹੈ, entire. ਠੀਕ ਹੈ, happiness is the chiefest aim. chiefest ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, chief aim ਤੋਂ ਸਮਝ ਲਓ ਉੱਪਰ, aim of mankind. How can divided India become the most supreme power? Most supreme power. No. So we can say supreme power. So ਆ ਜਿਹੜੇ words ਹੈ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ adjectives ਹੈ, ਇਹ already obsolete position define ਕਰਦੇ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ comparative ਜਾਂ superlative degree ਨਹੀਂ ਹੈ. how can divided India become the supreme power? नहीं, the लिख सकते, correct. अच्छा, हुण आ कुछ एडजेक्टिव्स है जिवें कि प्रायर, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, inferior, prefer, preferable, elder, etc. are followed by to instead of them. So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ or ਇਹ ਈ ਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਪ੍ਰੈਫਰ, ਪ੍ਰੈਫਰੇਬਲ ਅਤੇ ਐਲਡਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ. ਐਲਡਰ ਦੈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਲਡਰ ਟੂ ਹੁੰਦਾ. ਹੀ ਇਜ਼ ਐਲਡਰ ਦੈਨ ਮੀ, ਹੀ ਇਜ਼ ਐਲਡਰ ਟੂ ਮੀ. ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ? ਓਕੇ. ਸੋ nor are they used in comparative degree. ਇਹ comparative degree ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ use ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ. he is senior than me in service. he is senior to me in service. lemon juice is preferable than tea. preferable to tea. My sister is elder than me by 2 years. elder to me. अच्छा, preferable या preferable तो बाद जे तुसी to नहीं लिखना तो rather than लिख सकते हो. कि लिख सकते हो? rather than ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ. ठीक है, so she prefers coffee rather than tea. ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ than ਆ ਗਿਆ, ਬਟ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ rather than ਆ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ to ਲਿਖ ਦਿਓ. ठीक है, she is comparatively smarter than her husband. सो इत्थे मैं एक होर चीज़ दस है, इत्थे आपां नूं जो आपां वर्ड यूज़ करिए comparatively, फिर आपां smarter नहीं लिखना बिकॉज आपां comparatively जिहड़ा वर्ड है ऑलरेडी उन्होंने कंपेयर कर चुके हैं. दो बारी फिर कंपैरिजन यूज़ नहीं करांगे. आ ध्यान रखना इस चीज़ का. सो जी ऑलरेडी वर्ड की लिखा हुआ कंपैरेटिवली, सो दैन फिर आप नैक्सट जोड़ा है वो स्मार्टर
ER फॉर्म च नहीं लिखना, वाइज, ही इज़ कंपैरेटिवली वाइजर, नो, ही इज़ कंपैरेटिवली वाइज, ठीक है। शी इज़ मोर सीनियर, अच्छा जी सीनियर है, ये मोर सीनियर तो सीनियर ही रहना है, कितना भी उन्होंने सीनियर करी जाओ सीनियर ही रहेगा, ठीक है। सो ही इज़ सीनियर टू हर, शी इज़ सीनियर टू हर बॉस इन सर्विस। मिल्क इज़ मोर प्रेफरेबल टू टी, ना मोर प्रेफरेबल, जब टी तो प्रेफर मिल्क है तो कितना भी उन्होंने मोर करो तो वो सेम ही रहेगा, ठीक है। सो मिल्क इज़ प्रेफरेबल टू टी। इनू देख लो एक बार, जो कुछ पूछना है तो पूछ लो। देखो एक हुंदा एल्डर, एक हुंदा ओल्डर, की फर्क है दोनों च? एल्डर सिर्फ ब्लड रिलेशन च यूज होंदा है, ओल्डर किते भी चीज़ों के लिए भी यूज़ होएगा, तो जिथे ब्लड रिलेशन नहीं है उत्थे भी होएगा। जे मैं कहा राम इज़ एल्डर दैन श्याम, सॉरी राम इज़ एल्डर टू श्याम, दैट मीन्स वो दोनों ब्रदर है। जे मैं कहा राम इज़ ओल्डर दैन श्याम, फिर वो दोनों ब्रदर नहीं है। टू ब्लड रिलेशन ये आ जाना नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाए। मैनू बल्ला दसवा समझ आ गया। इस तो पहला कीता सी जे च आपां सुपरलेटिव डिग्री नहीं यूज़ करते, कंपैरेटिव डिग्री नहीं यूज़ करते, क्योंकि वो ऑलरेडी एक्सट्रीम है, यूनीक, कंप्लीट, स्क्वायर, राउंड, ठीक है, चीफ। ये वाले की है, इन्हां दे नाल आपां OR वाले जिहड़े हुंदे है या प्रेफर, प्रेफरेबल या एल्डर, इन्हां दे नाल आपां दैन दी जगह की यूज़ करते हैं टू। रेदर दैन मे बी यूज्ड फॉर टू आफ्टर प्रेफर, ठीक है। रेदर दैन नूं तुसीं शायद यूज़ कर सकते हो, जे करना है तो टू भी यूज़ कर सकते हो, रेदर दैन भी यूज़ कर सकते हो, किस तो बाद प्रेफर तो बाद। अच्छा हूँ नैक्सट देखो कुछ चीज़ां इंपॉर्टेंट है, लिटिल ते फ्यू। हूँ लिटिल दा कंपैरिजन की होंदा लेस, लेस दे विच हमेशा याद रखना है कितनी चीज़ों का कंपैरिजन होंदा दो, लीस्ट जो दो तो ज़्यादा, ठीक है। इदां ही फ्यू, फ्यूरर, फ्यूएस्ट। हूँ ये जिहड़े है ये नंबर दे लई यूज़ होंदा है, किहदे लई? नंबर, जिन्हों आपां कहांगे काउंटेबल, ठीक है। सो जो लिटिल है ये अनकाउंटेबल, सो लिटिल ते फ्यू ये दोनों एडजेक्टिव है जिहड़े, इन्हां विचों एक किहदे लई यूज़ होता है? काउंटेबल लई, दूसरा अनकाउंटेबल लई। काउंटेबल लई किहड़ा है? फ्यू, अनकाउंटेबल लई लिटिल। इन्हां दा कंपैरेटिव की है? लिटिल दा लैस ते लीस्ट, ते फ्यू दा फ्यूअर ते फ्यूएस्ट। इनू इस तरह भी यूज़ किया जाता है जिवें कि लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। की डिफरेंस है? हाँ जी, डिग्री दा। सो फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट, ये तो तुसीं दसोगे फ्यू क्वालिटी है तो मतलब कुछ घट है, तो फ्यूअर मतलब जो दो का कंपैरिजन करना है, तो फ्यूएस्ट मतलब जो ज़्यादा चो कंपैरिजन करना है। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू का की मतलब है? देखो फ्यू तो लिटिल ध्यान रखना है, ये दोनों ही किस तरह की मीनिंग शो करते हैं? नेगेटिव। किस तरह का मीनिंग शो करते हैं? नेगेटिव। इफ आई से आई हैव फ्यू बुक्स, मैं की कह रहा है? आई हैव फ्यू बुक्स, इसका मतलब मेरे को बुक्स बड़ियाँ घट है। जे मैं इदा ना कह के आई हैव फ्यू बुक्स,
ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਾਂ I have a few books, ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ a little ਜਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ, ਲਿਟਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ a little ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਹੈ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਿਹਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ? I have few books, I have a few books, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਮਨੀ, ਕਿਹੜੀ? ਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਥ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟੇਬਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅਨਕਾਊਂਟੇਬਲ 'ਚ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ 'ਚ ਅਨਕਾਊਂਟੇਬਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਲੈਸ ਮਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ? ਲੈਸ ਮਨੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਹੈ। ਫਿਊ ਮਨੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਬਟ ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਮਨੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਰੁਪੀਜ਼ ਜਾਂ ਡਾਲਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਫਿਊ ਡਾਲਰਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਊ ਰੁਪੀਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਲਰਸ। ਕੁਛ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਛਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ I have few dollars, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ I have a few dollars, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ? ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ I have few dollars left in my pocket, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਘੱਟ ਡਾਲਰਸ ਰਹਿ ਗਏ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਦੂਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? I have a few dollars left in my pocket, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ I have a few dollars left in my pocket। ਕੁਛ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ ਕੁਛ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਜੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। I have a few dollars, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਮੈਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਲੀ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਕੁਛ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ I have read few books, I have read few books, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਘੱਟ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਾਂ I have read a few books, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ a few ਹੈ ਉਹ few ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, few ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਆਲਮੋਸਟ ਨੈਗਲੀਜੀਬਲ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਾਧਾ ਹੋਣੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਅ ਫਿਊ, ਅ ਲਿਟਲ, ਉਹਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਬਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ? ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ I have read few books, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। I have read a few books, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ I have read the few books I have read the few books I have, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਟ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ I will give you the few dollars I have, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੈ ਬਟ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੱਢ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। the few ਹੁੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਬਟ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਬਟ ਜਿੰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ। I will give you the few information, I will give you the few information, कहता मैं the little information I have। information of few आएगा कि little आएगा? information countable है कि uncountable है? uncountable है। फिर होना few आना है कि little? जब मैं कहा I will give you the little information I have, मतलब मेरे को थोड़ी जी है, मतलब ज़्यादा नहीं है, थोड़ी है, ना दे बराबर ही है, बट जिन्नी है वो सारी दे सारे मैं तेन दे दूँगा। सो द फ्यू द लिटल का मतलब की है थोड़ा है, गल सिर्फ काउंटेबल तो अनकाउंटेबल च ही है, फ्यू तो लिटल च, बट वो जिन्ना है वो सारे का सारा। ये चो पूछना कुछ तो पहले पूछो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आप, सम इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, समवट इज यूज्ड एज एन एडवर्ब। हुण इत्थे ध्यान रखना है, जिहड़ा वर्ड है सम ते समवट,
ਆ ਐਡਜੈਕਟਿਵ है, एडजेक्टिव मतलब ये किहदे नाल आएगा तो ये किहदे नाल आएगा वर्ब। फॉर एग्जाम्पल मैं कहना कोई काम कुछ काम हो गया तो फिर डन जे लिखना है तो समवट दे नाल मैं डन लिख सकदा, सम दे नाल डन नहीं लिख सकदा। कुछ समझ पा रहे हो कि नहीं। सम ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਸਮ ਕਿੱਥੇ ਆਏਗਾ ਨਾउन ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਮਵਟ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਏਗਾ ਵਰਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਫਾਰਦਰ ਤੇ ਫਰਦਰ। ਫਾਰਦਰ ਫਾਰ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ डिस्टेंस ना। फर्दर जिहड़ा है ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ एडिशनल। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ आई एम गोइंग टू अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज़ के फारदर स्टडीज़ फर्दर एडिशनल ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ दूर वाली स्टडी मैं दूर जा रहा दूर वाली स्टडी करनी तो नहीं कहोगे ना ਤੁਸੀਂ ठीक है। सो फार फारदर फारदेस्ट ये दूरी की गल हो रही, वो दूर है वो ये नालों ज़्यादा दूर है, मतलब आ भी दूर है आ भी दूर है बट ये वाली ज़्यादा दूर है, तो फिर कई सारे दूर है बट आ वाला सब तो दूर है। ठीक है ये डिस्टेंस लिए होना है यूज फार। कुछ समझ पा रहे हो। सुनने ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ सेम सेम लगना बट ये एडिशनल एक्स्ट्रा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट की है अदर मीन्स द सेकेंड ऑफ द टू, अनदर मीन्स एडिशनल वन। कुछ समझ पा रहे हो कि नहीं। अदर अदर मीन्स द सेकेंड ऑफ द टू, मतलब दो चीज़ां सीगियां जे लेट्स सपोज मैनू आ मिल गई मैं कहना मैनू ये नहीं चाहिए, मैनू अदर वाली चाहिए कि अनदर चाहिए है। हाँ अदर मतलब आ नहीं आ वाली। अच्छा जो मैं अनदर कह तो मैनू आ भी चाहिए है तो एक एडिशनल वो भी चाहिए है। नहीं समझ आ रही की। हाँ अनदर मतलब लेट्स सपोज तुसी कोई खादा या तुहानू कुछ दिता तुसी कहने आई वॉन्ट अनदर, दैट मीनस तुहानू वो तो मिले मैनू एक होर चाहिए मीनस एडिशनल वन एक ही होर। ठीक है बट एक होर। अदर मीनस दूसरा आ नहीं दूसरा। ये आई होप तुम समझ आ गया। नैक्सट देखते हैं हुण आ पोर्शन आ गया तुहाडा ओल्ड सॉरी ओल्डर ओल्डेस्ट एल्डर एल्डेस्ट। इन्हां दोनों का बेस एडजैक्टिव ओल्ड ही हुंदा है। हुण तुसीं ओल्ड जिहड़ा है ਉਹਦੇ दो तरह के कंपैरेटिव ते सुपरलेटिव बना सकते हो। ओल्ड तो ओल्डर ओल्डेस्ट भी बना सकते हो, ओल्ड तो एल्डर एल्डेस्ट भी बना सकते हो। बट जो ओल्डर तो एल्डर कवांगे तो आप दो चीज़ों का कंपैरिजन कर देंगे। ठीक है बट इत्थे इंपॉर्टेंट है ये परसनस लिए यूज होंदा है, इज़ यूज्ड फॉर परसनस एंड थिंग्स। बट जिहड़े परसनस है उन्हां दे विच आपस च नो ब्लड रिलेशन। जे मैं कह देवां राम इज़ ओल्डर दैन श्याम ठीक है पर तुहानूं पता लग जाता इत्थे राम ते श्याम आपस च भरा नहीं है। अच्छा अच्छा जे आप एल्डर या एल्डेस्ट मतलब इनू यूज़ करते हैं ये सिर्फ किहदे लई यूज़ होंदा है परसनस लई, एल्डर थिंग्स लई तां यूज़ हो नहीं सकता। ठीक है इन केस ऑफ ब्लड रिलेशनस ठीक है इट रेफरस टू एज ओनली, इट रेफरस टू बोथ एज एंड टाइम, क्योंकि आप चीज़ की गल करते हैं फिर उम्र थोड़ी कवांगे। जब मैं कहा इन्ह इन दोनों चेयर्स विचों ये ज़्यादा पुरानी है। कुछ समझ रहे हो कि नहीं, मतलब पहला खरीदी होगी बाद चो खरीदी होगी। क्लियर हो गया। बंदियां च तां कर ही सकते हैं ओल्डर क्योंकि उन्होंने ब्लड रिलेशन नहीं है तो फिर आप ओल्डर ही कहांगे। हुण मैं अपना किसी होर दे नाल कंपैरिजन करना है आई एम ओल्डर दैन यू या यू आर ओल्डर दैन मी, तो उस केस दैट मीनस आप दोनों कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। बट जे मैं दूसरे पर्सन ना एल्डर का टर्म यूज़ कर रहे हैं कि आई एम एल्डर टू यू और यू आर एल्डर टू मी, सो दैट मीनस उत्थे मैं की कह रहा ब्लड रिलेशन है। आहो क्लियर हो गया। इतने कन्फ्यूजन तो नहीं है। नैक्सट चेक करिए। नैक्सट अच्छा हुण ये भी इंपॉर्टेंट है लेटर ते लेटर। कई बार आप इधर लिखते हैं सेंटेंस राम
and Shyam are brothers. ठीक है, राम एंड श्याम आर ब्रदर्स. Farmer is a doctor and later is an engineer. सही है. नहीं, ਜਿਹੜਾ वर्ड है later ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਲਈ यूज़ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? is the opposition of earlier, refers to time. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ? ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਣਾ ਹੈ? ਲੇਟਰ. राम इज ए डॉक्टर. पहले वाला डॉक्टर है तो जिहड़ा बाद वाला है पोजीशन दे बेस ते, किहदे बेस ते? पोजीशन ते, उन्हां दी पोजीशन. पहले वाला डॉक्टर है, मतलब डॉक्टर कौन है ते इंजीनियर कौन है? लेटर दा मतलब तो हो गया बाद विच, वो तो टाइम ना रेफर करेगा. नहीं समझ आया? कन्फ्यूजन है. ਜਿਹੜਾ वर्ड है ना LATER ਤੇ LATTER, फर्क तो सिर्फ टी ਦਾ ਹੀ ਹੈ, बट मीनिंग 'ਚ बहुत डिफरेंस है. एक रैफर करता है टाइम ਨੂੰ, दूसरा किनू रैफर करता है? पोजीशन ਨੂੰ. ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਫਾਰਮਰ ਲੇਟਰ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ? ਫਾਰਮਰ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾ, ਲੇਟਰ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ, पोजीशन ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ. ਕਲੀਅਰ ਹੈ? आई रीच्ड द डेस्टिनेशन ऑन टाइम. मैं एकदम समय पे पहुंच गया. कुछ समझ पा रहे हो कि नहीं? बट मैं कह रहा बट शाम केम लेटर देन आई एक्सपेक्टेड. ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है? हाँ, की आंसर आएगा फिर? करेक्ट. सो आ गलत है. इतने क्या आना है? पता लग जाएगा जो मिस्टेक हुई. क्यों? इतने लेटर का ऑप्शन ही नहीं, कोई पोजीशन की गल ही नहीं कर रहा, मतलब टाइम की गल कर रहा. वो बाद चो आया. मैं सोचता सी पहला आ जाएगा, और बाद चो आया. हाँ, इतने एक टर्म जिदा लिखी ना ऑन टाइम, एक होंगे ऑन टाइम, एक होंगे इन टाइम, एक होंगे इन गुड टाइम. जो मैं कहा ऑन टाइम मतलब एग्जैक्टली टाइम दे, द ट्रेन इज ऑन टाइम. ठीक है, द फ्लाइट इज ऑन टाइम. सो जो मैं कहा इस तरह ही इज़ ऑन टाइम, ही द ट्रेन इज़ ऑन टाइम, मतलब वो एग्जैक्ट टाइम ते है, ना पहला ना बाद. लेट्स सपोज 11 बजे की ट्रेन है, 11 बजे उत्थे पहुँच जाएगी, एग्जैक्ट 11 बजे. इन टाइम का होंगे, इन टाइम का मतलब होंगे बिफोर टाइम, थोड़ी देर पहला आ जाएगी. बहुत पहला नहीं, थोड़ी देर पहला. आई विल बी देयर इन टाइम, आई विल बी देयर ऑन टाइम, एग्जैक्ट टाइम पर मैं पहुँचूँगा. 11 बजे गई, 11 बजे पहुँचूँगा. आई विल बी देयर इन टाइम, टाइम तो पहला पहुँचूँगा मैं. 11 बजे पे क्या, मैं 2 4 5 मिनट पहला हो जाऊँगा. इन गुड टाइम काफ़ी देर पहला, मतलब जो 11 बजे किया मैं 10:30 पहुँच जाऊँगा. मतलब जो किया गया टाइम है वो तो काफ़ी देर पहला. तिना का डिफरेंस क्लियर हो गया. सो ऑन टाइम, इन टाइम, इन गुड टाइम.
नैक्सट चेक करिए, इचों पूछना है कुछ। आ लेटर ते लेटर पता लग गया। लेटर मीन्स टाइम, लेटर मीन्स पोजीशन। अच्छा, लेटेस्ट मीन्स रीसेंट, लास्ट मीन्स लास्ट ऑफ ऑल मीन्स पोजीशन। अगेन लेटेस्ट किनू रैफर करता है, टाइम नू, ते लास्ट किनू रैफर करता है, पोजीशन नू। क्लियर हो रहा है कि नहीं? इत्थे लेट, लैटर, लास्ट, लेटेस्ट सॉरी लेटर, लेटेस्ट ये किनू रैफर कर रहा है, टाइम। इत्थे लेट, लैटर ते लास्ट ये किनू रैफर कर रहा है, पोजीशन। सारिਆਂ तो एंड दे विच, सारिਆਂ तो लेटेस्ट टाइम दे विच अकॉर्डिंगली जिहड़ा सब तो कोल है। लेटर ये भी पोजीशन है, ये बाद विच। हुण तुसीं मैनूं आंसर सॉल्व करके देने। एक एक करके आंसर दे दो। फर्स्ट की मीनिंग है? हाँ, ठीक है, वो तो सही है, लिटिल तो सही है। लिटिल जिवें मैं दसिया सी, लिटिल ते फ्यू ਇਹਦਾ मतलब की ਹੁੰਦਾ है घट, बट मैं दसिया सी की ਹੁੰਦਾ ना दे बराबर ऑलमोस्ट नेगलिजिबल। हाँ जी, करैक्ट, बिल्कुल सही। थोड़ी बारी तो नहीं सी होता, चलो कोई नहीं। सो इत्थे की आना है अ लिटिल, थोड़ी कॉमन सेंस, मतलब थोड़ी कॉमन सेंस जिहड़ी है, भावें थोड़ी है बट है, थोड़ी है। देखो मैं एक बार फिर दस दिना, जिहड़ा हुंदा है लिटिल, अ लिटिल ते द लिटिल, या फ्यू, अ फ्यू ते द फ्यू। लिटिल मीनस नेगेटिव मीनिंग, फ्यू मीनस नेगेटिव मीनिंग। जे आप उन्होंने पॉजिटिव च कन्वर्ट करना है तो वो मोरे अ लिटिल या अ फ्यू लिखना पएगा। जे आप किहड़ी सेंस बनानी है, पॉजिटिव। तो जे द लिटिल द फ्यू कहना है, मतलब थोड़ा है बट वो सारे दा सारा। इत्थे लिटिल कॉमन सेंस कैन ब्रिंग सक्सेस टू यू। अ लिटिल कॉमन सेंस मतलब थोड़ी जी है जिहड़ी कॉमन सेंस, उन्ना ही कोई फर्क पै सकता है। नहीं समझ आया क्या? क्या ठीक है। सो आप यूज करांगे अ लिटिल। नेक्स्ट देखो, सही है। जल्दी जल्दी, करेक्ट। ओ क्यों? बिल्कुल, उन्हें मेरे लिए बहुत थोड़ा किया है, बट जिन्ना भी किया है थोड़ा है, भावें बहुत ज़्यादा नहीं है बट थोड़ा, बट जिन्ना भी है वो सारे का सारा मैं कभी भुल नहीं सकता। अच्छा अनफॉरगेटेबल। अच्छा थोड़ा ही तो मैं भूल जाओ, कोई नहीं। अच्छा 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 चलो ठीक है, नहीं पता लग गया हूँ इतने की आना है द। ठीक है, द लिटिल दैट शी डिड फॉर मी इज अनफॉरगेटेबल। चलो नेक्स्ट देखिए। अच्छा नेक्स्ट दसो। नहीं मैं दसदा, इत्थे भी आप अ लिटिल नॉलेज एक फ्रेज है जो आप भी कहने हैं ना, अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। इसका मतलब की होंगे, देखो जे तो लिटिल नॉलेज है मतलब उन्होंने ऑलमोस्ट ना दे बराबर है, वो करेगा नहीं।
ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਬਟ ਜਿਹਨੂੰ ਅ ਲਿਟਲ ਨੌਲੇਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜਨਰਲੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵਰਬ ਹੈ, ਅ ਲਿਟਲ ਨੌਲੇਜ ਇਜ਼ ਡੇਂਜਰਸ ਥਿੰਗ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਤਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲਿਟਲ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਿਟਲ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰ ਲਊਂਗਾ, ਉਹ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਕਹੇ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਕਹੂੰਗਾ ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਲਿਟਲ ਨੌਲੇਜ ਅਬਾਊਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ। ਲਿਟਲ ਨੌਲੇਜ ਅਬਾਊਟ ਆਈ ਹੈਵ ਲਿਟਲ ਨੌਲੇਜ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਜਿਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਗਾ ਲਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਪੰਗਾ ਲਏਗਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅ ਲਿਟਲ ਨੌਲੇਜ ਇਜ਼ ਡੇਂਜਰਸ ਥਿੰਗ। ਨੈਕਸਟ, I request him to bring me few books. I requested him to bring me few books. ठीक है, करेक्ट। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, a few books। ठीक है, next, few days I passed in her company were exciting. पहला मैंने दसो मतलब समझ आ रहा है कि नहीं? अच्छा, few days I passed in her company were exciting. की मतलब है? करेक्ट, थोड़े दिन गुजारे। ठीक है, थोड़े दिन गुजारे कि नहीं, बट जिन्ने भी गुजारे वो सारे एक ही सीगे एक्साइटिंग। सो द फ्यू डेज वर एक्साइटिंग, ये मेन पोर्शन है। आई पास्ट इन हर कंपनी, वही वाले डेज। इतने दैट लिखना लिख भी सकते हो, नहीं लिखना ना भी लिखो। द फ्यू डेज दैट आई पास्ट इन हर कंपनी वर एक्साइटिंग। मैं दसो समझ आ रहा है कि नहीं?